Good morning, friends. Hope you are all fine. Yes, students, we have done up to the concept of what are the concept requirements and fields of BPO. So, what is the full form of BPO? Can I know from you BPO full form का मतलब क्या होता है? BPO means what? Business Process Outsourcing. ये क्यों होता है? Already we have seen. BPO means a contractual service given to any other group to do that particular work in order to make our cost or the expenditure to be reduced. है ना? That is known as BPO. Then we have started with the topic, friends, requirement of BPO. कोई भी काम करने से पहले we require some requirements obviously in order to prepare a particular dish at home. You can see that your mom is arranging the first of all the ingredients, and after that she will mix all the ingredients and give the best dish to you. In the same way, for doing a BPO process or to do the BPO business, what are the requirements? It's a very interesting topic. Let's see. So what are the topic is they want to say that yes. So what are the topic of requirements of BPO? The first and the foremost objective of BPO is cost cutting. So now what is cost cutting? It's very simple. What is cost cutting? Cost cutting means to reduce the expenditure. We know that due to this pandemic situation of COVID-19, so all the industries are reducing the cost, reducing the expenditure, reducing the employees, right? Everything they are doing in order to sustain in the industry. It's a normal thing. So cost cutting, how to do the cost cutting? Let's see. Business unit can reduce expenditure by outsourcing of front office work like billing, purchasing, data entry and marketing survey. Right. Any production house, what is their objective? Any production house, what is their objective? Their objective is to make the production more and to make the sales more. दो ही चीज पे उनका फोकस होता है, टू मेक द प्रोडक्शन मोर, सुन रहे हो, मेक द प्रोडक्शन मोर एंड टू मेक द सेल्स मोर, है ना? So there are only two objectives for them. One is the sale बढ़ाना and number two is to increase the production. यही दो काम के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? What they are doing? Cost cutting. तो कैसे करेंगे cost cutting? चलो सुन रहे हो? What is cost cutting? Business unit can reduce the expenditure by outsourcing of front office. फ्रंट ऑफिस मतलब जो ऑफिस की शुरुआत में क्या होता है, इफ यू गो टू ऑफिस, आपको सुनाई दिखाई देता होगा, द फर्स्ट पर्सन सिट एट द रिसेप्शन ऑफिस एंड सर व्हाट कैन आई डू, मैम व्हाट कैन आई डू, रिसेप्शन ऑफिस, राइट? आउटसोर्सिंग ऑफ फ्रंट ऑफिस वर्क लाइक बिलिंग, बिलिंग का काम होता है, परचेसिंग का काम होता है, डेटा एंट्री का काम होता है, मार्केटिंग सर्वे. So what the enterprise can do? The enterprise can focus on the main activities of the business. Main काम पे वो focus कर सकते हैं और जो भी काम बाहर से करवा सकते हैं वो हम बाहर से करवाते हैं. So what we can say, cost cutting. Business unit can reduce the expenditure. Business unit can reduce the expenditure by आउटसोर्सिंग सम ऑफ द फ्रंट ऑफिस वर्क लाइक बिलिंग का काम है, परचेसिंग का काम है, डेटा एंट्री का काम है और द मार्केटिंग सर्वे. गेटिंग? नाउ कम्स द सेकेंड टॉपिक, फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी, है ना? सबका देखो अलग अलग काम रहता है, स्पेशलाइजेशन रहता है. if for example in lockdown if your dad says that okay today all the work done by me, हाँ एक दिन के लिए वो ट्राई कर सकते हैं but he will not be become specialized in that, maybe some of them, right? But 99% जेंट्स को पूरा किचन संभालना मतलब not possible, but our mom can do it. अगर मम्मी को बोले चलो ऑफिस में जाके काम करना है, गाड़ी चलाना है और भी बहुत सारे काम करना है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस थोड़ा कम रहता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ पर्सन. यानी व्हाट द मीनिंग इज दैट मेन काम पे फोकस करो, है ना? आप लोग भी जैसे ऐसे स्टूडेंट एग्जांपल में ले रहा हूँ, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ,
आपको दिया जाता है होमवर्क बचपन से, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड यू पीपल आर डूइंग होमवर्क. तो हाउ यू आर डूइंग होमवर्क, कैसे करते हो आप? बाय टेलीविजन चैनल ऑन रहता है, बाय सीइंग द नोटबुक टेक्स्ट बुक, बाय राइटिंग इन द बुक. इससे क्या फायदा हुआ? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी. उससे ज्यादा कुछ तो फायदा हुआ नहीं. तो आपका मेन फोकस क्या है? डोंट डू द होमवर्क. आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा लगे चलो सर बोलते होमवर्क ही मत करो. नहीं, होमवर्क आपको करना है बट बाय योर ओन, आपकी मेहनत से आपको करनी है. कहीं से आपको कॉपी और पेस्ट नहीं करना है. उससे क्या है कि आपका डेवलपमेंट नहीं होगा और आपका फोकस नहीं रहता है. तो व्हाट दे वांट टू से, फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी. Managers can specially focus to the principal work of the company by outsourcing of daily works of professional unit. तो क्या लिखा है देखो, मैनेजर कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी. मैनेजर्स फोकस कर सकते हैं. कौन से काम पे फोकस कर सकते हैं? स्पेसिफिक वर्क, मतलब प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी. कैसे? बाय आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क. आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क, जो छोटा मोटा काम होता है वो दूसरों को देख के, है ना. जब मैनेजर आता है तो देखा है वो कभी मैनेजर का कैबिन ओपन नहीं करता, इट इज ऑलरेडी ओपन. साफ सफाई रहती है, राइट. टेबल पे पानी रहता है. दैट मीन्स द मैनेजर इज फ्री टू गो टू हिज कैबिन. he can sit, he can see his computer and he can do the required. मतलब और कहीं पे उसको ध्यान नहीं देना है. ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेस क्लास पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? दे कीप द ड्राइवर विद देम. हर चीज के लिए उनके पास एक सर्विस देने के लिए लोग होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम इनके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहते. अपना टाइम ये सब छोटे छोटे कामों पे वेस्ट नहीं करना चाहते. दे फोकस ओनली ऑन प्रिंसिपल वर्क. तो क्या कहना चाहते हैं? मैनेजर कैन स्पेशली फोकस, क्या लिखेंगे? मैनेजर कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क ऑफ अ कंपनी बाय आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क ऑफ प्रोफेशनल यूनिट. व्हाट वी कैन से, मैनेजर कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क by assigning some work to the professional unit. So what we can say? Number 2, focus on the principal work of the company. क्या लिखा है? मैनेजर कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क ऑफ कंपनी बाय आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क. देखो, वो जो मेन काम होता है ना, जो प्लानिंग का काम होता है, वो रोज नहीं होता. वो छोटे, वो तो महीने में एक बार करना होता है, महीने में 2 बार करना पड़ता है. बट क्या कहना चाहते हैं, जो डेली वर्क होते हैं, जैसे कि परचेसिंग का काम है, हमने अभी देखा था. बिलिंग का काम है, हमने देखा था. मार्केटिंग सर्वे जो है, डेटा एंट्री जो काम है, वो सब तो रोज करना पड़ता है. तो वो हम किसी प्रोफेशनल यूनिट्स को दे देंगे. तो व्हाट वी कैन से, पहला कौन सा पॉइंट था? कॉस्ट कटिंग, काम मतलब एक्सपेंडिचर कम करना. दूसरा क्या था? फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी. प्रिंसिपल वर्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देना. मैनेजर कैन स्पेशली फोकस टू द प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी बाय आउटसोर्सिंग ऑफ डेली वर्क ऑफ प्रोफेशनल यूनिट. तीसरा है बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मतलब हम सब जानते हैं अपनी कैपेसिटी. स्टेमिना भी बोल सकते हो आप, कैपेसिटी के नाम से भी पहचाना जा सकता है. क्या लिखा है? बिजनेस कंसर्न कैन गेट क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज. देखो, कोई कोई जगहों पे लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, राइट. सम ऑफ द पीपल आर डूइंग इन द सम एक्सपर्ट वर्क. आपने प्लम्बर को बुलाया तो वो प्लम्बिंग का काम जानता है. उस प्लम्बर को बोले काम करो, आप इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी नहीं है. तो क्या कहना चाहते हैं? बिजनेस कंसर्न कैन गेट क्वालिटी वर्क. Business concern can get quality work by outsourcing instead of recruiting and training employees. Recruiting करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, ये सब बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो इसलिए क्या लिखा है? Business concern gets quality work by outsourcing instead of recruiting and training employees. समझ में आया? So what are the benefit of efficiency? Business concern can get quality work
by outsourcing quality work by outsourcing instead of recruiting and the training employees. चलो आगे फोर्थ में लिखा है, थर्ड हम हाईलाइट कर लेता हूँ. व्हाट आर द 3 पॉइंट्स वी आर लर्न. द फर्स्ट इज द कॉस्ट कटिंग. फ्रंट ऑफिस वर्क कौन से थे, चलो बोलो. व्हाट आर द फ्रंट ऑफिस वर्क? डेटा एंट्री, बिलिंग, परचेज एंड मार्केटिंग, सर्वे. दूसरा क्या था? टू फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क ऑफ अ कंपनी. प्रिंसिपल वर्क पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. तो क्या है इसमें? मैनेजर कैन स्पेशली फोकस ऑन द principal work of the company by outsourcing the daily work for professional units. Now, what is benefit of efficiency? Business concern can get quality work. Business concern can get quality work by outsourcing instead of recruiting and training employees. तो क्या लिखा है? Business concern can get quality work by outsourcing instead of recruiting and training employees. तो हमने 3 पॉइंट पढ़ा अभी. तो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? द फर्स्ट इज द कॉस्ट कटिंग, नंबर 2 इज प्रिंसिपल वर्क, फोकस ऑन द प्रिंसिपल वर्क, एंड थर्ड इज बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी. फोर्थ क्या है? टू कैटर द डायनामिक डिमांड. नाउ व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक डिमांड का मतलब क्या होता है? लोगों का डिमांड बढ़ता जाता है. जैसे कि अभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनका नाम क्या आपको पता है? नितिन गडकरी. तो क्या कहा उन्होंने? Within 2030, no petrol, no diesel vehicle, only electronic vehicle will be there in the road. रोड पे सिर्फ अब कौन सी गाड़ी चलेगी? इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चलेगी 2030 से. एंड 10 साल के अंदर हमें ये टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा. यानी क्या डिमांड, कितना डिमांड बढ़ने वाला है बैटरी बनाने वाली कंपनियों का, तो इस सब का, सोलर बनाने वाली कंपनियों का, मतलब बहुत सारा डिमांड बढ़ने वाला है. व्हाट वी कैन से? बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी. बिजनेस concern can get call, पहला तो रिवर्स कर रहा हूँ. business concern can get quality work from the outsourcing instead of recruiting and training. To cater the dynamic demand, BPO company provide facilities to cater. कैटरिंग सुना होगा आपने, जो हमारी जरूरत के हिसाब से हमको जो खाना बना के देती है. जब कोई मैरिज का फंक्शन होता है, एनिवर्सरी होता है, तो हम किसी बंदे को बुलाते हैं और उसको हम जॉब देते हैं कि देखो भाई आपको ये कैटरिंग का काम संभालना है. तो हमारी जरूरत के हिसाब से BPO company provides facilities to cater the ever changing demand of the customers. कस्टमर को जो चाहिए वो मिल सकता है. To cater the dynamic demand. तो ये क्या है? BPO company provide facilities to cater the ever-changing demand of the customers. So what we can say? BPO companies provide facilities. क्या लिखा है? BPO company provide facilities to cater the ever-changing demand of the customers. बराबर. फिफ्थ है increase in profit. प्रॉफिट को बढ़ाना. प्रॉफिट बोलेंगे बस सर काम तो हमने दूसरों को दिया तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा. यस, लेकिन अगर नहीं करते तो आपको खुद करना पड़ेगा. तो आपका फोकस कहाँ है? और कहीं चला जाता है. इंक्रीज इन प्रॉफिट. बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर सब्सिडरी फंक्शन. मेन फंक्शन तो अपने पास रखना है. एंड पे मोर अटेंशन, ज्यादा ध्यान दे सकते हैं टुवर्ड्स मेन फंक्शन. लाइक कौन सा मेन फंक्शन है? इंक्रीज इन सेल. सेल को बढ़ाना है. डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट. नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना है. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को एक्सपेंड करना है. एंड सेटिस्फाई द कस्टमर. कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. एज अ रिजल्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीजेस. सो व्हाट वी कैन से? इंक्रीज इन प्रॉफिट. क्या लिखेंगे? बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर. क्या लिखा है? बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर सब्सिडरी फंक्शन. क्या? बहुत सिंपल लिखा है. बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर सब्सिडरी फंक्शन एंड मोर अटेंशन टू द मेन फंक्शन. लाइक क्या क्या मेन फंक्शन है? इंक्रीज इन सेल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था. ईच एंड एवरी इंडस्ट्री हमेशा कोशिश क्या करती है? इंक्रीज इन सेल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना, एंड सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर को संतुष्ट करना. मेन काम वो है. सेल बढ़ाना. सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा. नए नए प्रोडक्ट्स, लोग
कस्टमर्स क्या होते हैं, उनको मार्केट नए नए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, राइट। पुराने प्रोडक्ट्स से क्या बोलते हैं, मन थोड़ा हो जाता है कि रोज एक ही प्रोडक्ट, तो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को एक्सपेंशन करना, बढ़ाना, एंड सेटिस्फाई द कस्टमर। As a result, profit of a business unit increases. So what we can say, business unit can outsource their subsidiary function. Business unit can outsource their subsidiary function and pay more attention towards the main function, like increase in sale, sale को बढ़ाना, development of new product, नए products को, expansion of business, and satisfy the customer, customer को satisfy करना. As a result, profit of a business unit increases. अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही है, बराबर। चलो, तो क्या क्या पढ़ा हमने, इंक्रीज, क्या क्या पढ़ा हमने, 4 मेन फंक्शंस पढ़े। तो लेट्स सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीपीओ। तो पहला रिक्वायरमेंट है, क्यों हम बीपीओ को काम देते हैं, ऐसा पूछा गया है। व्हाई वी गिव द जॉब टू बीपीओ। फर्स्ट इज द कॉस्ट कटिंग, because the lot of work like billing, purchasing, data entry, marketing survey we can do with other agency. Number 2, we can focus on the main function, इसलिए लिखा है मैनेजर कैन easily focus to the principal function of the company. थर्ड इज बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, हमें रिक्रूटमेंट करना, हमें ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है, तो हम और किसी को बोल देते हैं। टू कैटर द डायनामिक डिमांड, अपना उनका डिमांड को सेटिस्फाई करना। फिफ्थ है इंक्रीज इन प्रॉफिट, बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स उनका काम, जो सब्सिडरी फंक्शन है उसको दे के किस कौन से काम पे फोकस कर सकते हैं, लाइक इंक्रीज इन सेल, सेल को बढ़ाना, राइट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को बढ़ाना, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना, एंड सेटिस्फाई द कस्टमर। ये मेन 4 फोकस है। कौन सा है, इंक्रीज इन सेल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये मेन चीज है ना। मेन चीज क्या होता है बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन ऑर्डर टू कीप द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। आपने प्रोडक्ट मार्केट से लिया, कोई भी चीज, वेदर इट एनी व्हाट वी से, एनी मोबाइल फोन हो या फिर कोई भी सामान हो, कुछ भी आपने लिया, चलो, तो अगर वो चीज आपको पसंद नहीं आए तो एक बार तो आप धोखा खा लोगे, लेकिन अगली बार आप नहीं लोगे। तो आपका कस्टमर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाए, वो तो अपनी जरूरत पूरी करके रहेगा, तो वो दूसरे प्रोडक्ट के पास जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। नाउ द कम्स द स्कोप ऑफ बीपीओ। व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीपीओ। बीपीओ का स्कोप मतलब कितना बड़ा है वो। बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, it includes internal functions of business like billing, purchasing, data entry. अभी हमने देखा कि बीपीओ क्या क्या कर सकता है। स्कोप का मतलब क्या है, क्या क्या कर सकता है। आज अगर हम, आज बहुत सारे रोबोट्स आ चुके हैं, तो क्या क्या कर सकता है रोबोट, सोच सकता है, आगे जाके सोचेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल वो सोच नहीं सकता, उसको जैसा बोलेगा वो वैसे करेंगे। वैसा मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है, कितना वो काम कर सकता है आपके लिए, स्कोप। तो इट इंक्लूड्स इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस, लाइक क्या क्या काम है, बिलिंग है, परचेसिंग है, डेटा एंट्री एक्सेट्रा। तो बैक ऑफिस मतलब बैक ऑफिस के जो भी काम है हम किसी को भी दे सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस, लाइक क्या क्या है, बिलिंग है, परचेसिंग है, डेटा एंट्री। फ्रंट ऑफिस वर्क, फ्रंट ऑफिस में क्या, इट इंक्लूड्स कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, लाइक कस्टमर, जैसे कि मार्केटिंग का है, टेक्निकल असिस्टेंट एक्सेट्रा, राइट। जैसे कि मुझे कल जरूरत पड़ी तो मैंने बैंक में फोन किया, तो वहां पे बैंक का एम्प्लॉयज नहीं फोन उठाएगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, वो आउटसोर्सिंग हो जाता है कि चलो भाई बैंक का ये आए, कस्टमर आएगा, ये अपना डेट ऑफ बर्थ बताएगा, अपना अकाउंट नंबर ये देखेगा, टैली होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए आप दे सकते हो। ऐसा तो परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। तो व्हाट वी कैन से, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, इट इंक्लूड इंटरनल फंक्शंस लाइक बिलिंग, इट इंक्लूड इंटरनल फंक्शन लाइक बिलिंग, परचेसिंग, डेटा एंट्री, है ना। फ्रंट ऑफिस वर्क, इट इंक्लूड द कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, लाइक कस्टमर के लिए, जैसे कि मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एक्सेट्रा। चलो, तो ये हुआ
स्कोप ऑफ बीपीओ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा फ्रेंड? तो पहले तो हमने पढ़ा बीपीओ क्या होता है, अपना काम दूसरों से करवाना। और क्यों करवाते हैं अभी हमने पढ़ा, रिक्वायरमेंट्स क्यों करवाते हैं, कॉस्ट कम करना, फोकस करना, अपने फोकस करना मेन कामों पे, एफिशिएंसी का फायदा उठाना, कैटरिंग द कस्टमर डिमांड एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। स्कोप ऑफ बीपीओ, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। इट इंक्लूड इंटरनल फंक्शन, बैक ऑफिस मतलब ऑफिस के सारे, बिलिंग का काम करना, परचेसिंग का काम करना, डेटा एंट्री का काम करना। फ्रंट ऑफिस मतलब जो ऑफिस का मेन काम है, लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एक्सेट्रा। तो ये हुआ अपना मेन काम। अब है केपीओ। अब ये क्या है? ये भी एक नया टॉपिक है, केपीओ। नाउ व्हाट इज दैट? सुना है केपीओ का मतलब? बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस का मतलब हमने देखा था, बिलिंग का काम देना, डेटा एंट्री का काम देना, परचेसिंग का काम देना, कस्टमर सर्वे करवाना, मार्केटिंग सर्वे करवाना, ये सब हमारा बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस। अब केपीओ क्या है? अपना नॉलेज, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो क्या लिखा है, KPO मीन्स आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रोसेस। अब ये सिचुएशन में देखो बहुत सारे है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अपना जो लेक्चर्स दे रहे हैं, राइट, रिलेटेड टू कोविड हो, एजुकेशन हो, सब चीज। तो वो क्या है, नॉलेज, अपना नॉलेज शेयर करते हैं डॉक्टर से, ये सब। बीपीओ इज वर्क ओरिएंटेड, देखो क्लियर लिखा है, बीपीओ इज वर्क ओरिएंटेड, काम से मतलब है, while KPO is knowledge oriented। KPO का मतलब भी फुल फॉर्म ही K stands for knowledge। Process related to work are focused in BPO। Process related to work, work क्या कैसे करना है, वो सब किसके अंदर आता है, BPO। While mostly the process related to knowledge, knowledge का जो काम है, are focused in concept of KPO। KPO include processes which accepts advanced knowledge and skill। क्या लिखा है? KPO include processes which accept advanced knowledge चाहिए, and skill that are responsible for the development of the company। क्योंकि विदाउट नॉलेज, बोलते हैं ना, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना। हर देश अपना जीडीपी का 5 to 7% R&D पे लगाता है। अभी वैक्सीनेशन के ऊपर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे, रिसर्च के ऊपर, फ्लाइटर जेट्स, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों पे लोग क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, है ना। अभी तो हर देश बढ़ा रही है। तो व्हाट वी कैन से, केपीओ। केपीओ मीन्स आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज। तो देखते हैं पहला टॉपिक, केपीओ। व्हाट इज केपीओ? KPO means outsourcing of knowledge based process, right? Knowledge based process। BPO is work oriented, देखो क्लियर लिखा है, BPO is work oriented while KPO is knowledge oriented। देखो क्लियर लिखा है। What we can say KPO? KPO means knowledge oriented process while BPO is work oriented process। दोनों का डिफरेंशिएशन भी वो लिख सकते हैं आप। What is KPO? KPO means knowledge process outsourcing, while BPO is work oriented processing। Process related to work, process क्या लिखा है, processes related to work are focused on BPO। Focus related to work are focused in BPO। Focus related to work are focused in, process related to work are focused in BPO। While mostly the process related to knowledge, knowledge का जो होता है वो किस में जाता है, KPO। While mostly the process related to knowledge are focused on KPO। KPO include processes while accept advanced knowledge and skill that are responsible for development of a company। So we can say, the पहला है explanation of KPO। So what is KPO? KPO means outsourcing of knowledge। KPO का मतलब outsourcing of knowledge, while BPO means work oriented काम, और KPO मतलब knowledge oriented। Now what are the requirements of KPO? तो अभी हमने क्या पढ़ा था, याद है? हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीपीओ।
तो बीपीओ में हमने क्या देखा था, कॉस्ट कटिंग करना, उसके लिए प्रिंसिपल काम पे फोकस करना, उसके लिए एफिशिएंसी को बढ़ाना, उसके लिए कैटरिंग डिमांड जो कस्टमर्स के है का डिमांड सेटिस्फाई करना और प्रॉफिट को बढ़ाना, ये सब हमने देखा था। अब ये क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ केपीओ, अब ये क्या है, केपीओ के लिए क्या चाहिए, अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, राइट, पॉइंट्स पढ़ेंगे, अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का बराबर यूज करना, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन, मेन काम पे फोकस करना, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, राइट, पैसे का बराबर इस्तेमाल करना, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस करना, कम करना, रिडक्शन इन द रिस्क, रिस्क को कम करना, राइट। तो ये लास्ट टॉपिक है, देखो इसके बाद पूरा टॉपिक का समरी शुरू होता है, राइट। सो एक बार देखते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ केपीओ। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज देखी है। वी हैव लर्न द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, पहले हमने शुरू किया, फिर ई कॉमर्स हमने देखा, देन आउटसोर्सिंग हमने देखा, ठीक है। तो अब क्या है रिक्वायरमेंट्स ऑफ केपीओ, क्या क्या पॉइंट है, अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, मेन स्किल के ऊपर फोकस करना होता है, अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, मैक्सिमम यूज ऑफ सोर्सेज, जितने भी हमारे पास सोर्सेज है उसका भरपूर इस्तेमाल करना, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना, स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन, जो मेन फंक्शन है उसके ऊपर ध्यान देना, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या है, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट में रिडक्शन इन द रिस्क, रिस्क को कम कर देना, राइट। तो फ्रेंड्स, होप you have seen this video properly, so practice it very hard. I already said by reading you cannot get anything, you have to make the notes, just complete your notes in a better way, you get everything into your concept. Okay, so in the next period we will continue with the topic of what are the requirements of KPO and all, right. So hope your day will be good. Enjoy it. Take care. Thank you for listening. God bless you.